Assalamu alaikum students, and today we have started our first session of computer, and you all know that we are having 2 chapters that are included in our first periodic. So today we will cover 1/6 part of the chapter today. Okay, we will just cover one topic today of chapter number 1, and we will cover the remaining topics in further classes. So everyone take out your computer books and open page number 3 of the book. We learned about number systems in book 2. You know that different number systems are used to represent the same meaning, a number or a letter in different ways. We studied the binary number system and the decimal number system. We learned how to convert binary numbers into decimal numbers and vice versa. We also learned how to add one subtraction to binary numbers. In this chapter, we will learn how to multiply and divide binary numbers. We will also learn how to convert decimal numbers into octal and hexadecimal. Okay, so this was an introduction, students. In your previous class in level 7, in book 2, we have already learned in chapter number 1 the same topic, that how to convert binary number into decimal number, how to convert decimal number into binary number. Okay, and we have also learned that how to add and subtract binary numbers. Okay, but in this book, in this chapter, we will learn that how to multiply and divide binary numbers. बुक 2 में तो बेटा हम लोगों ने बाइनरी नंबर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ा था हम लोगों ने. ओके, लेकिन अब बुक 3 में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाइनरी नंबर्स की, और कन्वर्ट करने को डेसिमल नंबर को ऑक्टल में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, इन सब का जो है हम लोग इनकी कन्वर्जन्स भी पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स. Multiplying binary numbers is quite simple. It is similar to multiplying two numbers in the decimal system, but we only need to multiply ones and zeros. The difference is that we need to remember the rules of binary addition. Let's revise these rules. Okay, beta, whenever we are going to multiply binary numbers, so we have discussed this in level 7 के binary के जब हम एडिशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं. अब वो रूल्स कौन से होते हैं उनको एक दफा रिवाइज करेंगे, हम एक दफा उनको याद करेंगे रूल्स क्या होते हैं, और उसी की बेसिस पे हम वंस और जीरो, क्योंकि बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, 1 एंड 0, तो उसको जरा एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं. जैसे आप लोग पेज फिगर 1.1 में देख सकते हैं रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन. सो इट्स 0 प्लस 0. जब हम 0 को 0 के साथ ऐड करते हैं, वो सिंपल जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं 0 प्लस 0 करते हैं तो 0 ही रहेगा. बट इफ वी आर एडिंग 0 विद 1, सो आवर आंसर विल बी सेम. वही आंसर होगा हमारा 1, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर 1 प्लस 0 करेंगे तो भी उसका आंसर सेम होगा 1. बट अगर बेटा हम लोग 1 प्लस 1 करते हैं तो मैथमेटिकल व्यू से अगर हम देखें, so the answer will be 2. But if we want to add in the binary number, so we will write 0 with 1 carry. 0 को 0 हम लोग डाउन वाले जो रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, उधर लिख लेंगे, और 1 जो है नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे देंगे. ठीक है, जो दूसरे कॉलम में नेक्स्ट वैल्यू होगी ऊपर वाली, उसको हम एक कैरी दे देंगे. And now let's see how can we multiply two binary numbers using these rules. अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई एक्चुअली कैसे करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल they have given that 111 multiplied by 1011.
बेटा अगर 111 को मल्टीप्लाई करना है 1011 से, बाइनरी नंबर की बात की जा रही है, तो बेटा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू पहले है 1011, तो वो हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ओके, वो हमने जब ऊपर लिख लिया है, और इसको जो है अब हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से। ओके, इसको जो है हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब बेटा सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 1 आर 1, हम लोगों ने इसके लाइन ड्रॉ की और इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब अगर 1 को सेकंड कॉलम के इसी के जो डाउन वाला है, इसको जो है हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1, राइट? बट देन we have third digit in the first column and we will multiply with the first digit of the last digit with the second column. 1 multiplied by 0 will become 0, right? 0 लिख दिया अब हमने नीचे। उसके बाद बेटा फिर हम लोग 1 को जो है उसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से। 1 multiplied by 1 will become then 1. Okay, 1 multiplied by 1 will become then 1, right? अब उसके बाद जो है बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, जैसे हम लोग मैथ्स में फॉलो करते हैं, क्योंकि अब हम लोग दूसरे डिजिट पर मूव करें। अब इसको भी कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है बेटा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है बेटा? फिर हम लोगों ने इधर लिख लिया 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बिकम 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम 1, राइट? बेटा मल्टीप्लीकेशन रूल तो वो ही होगा, बस एडिशन रूल हमें याद रखना है। ठीक है, ओके, देन यू हैव नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड डिजिट। बेटा ये देखें, अगर हम लोग देख रहे हैं हमारा थर्ड और लास्ट डिजिट रह गया है इसका सेकंड कॉलम का, तो अब हम लोग 2 मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वी विल राइट 1, 1 1s are 1, 1 zeros are 0 and again 1 1s are 1, राइट? अब बेटा अब हमारे जो है तीनों डिजिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सो वी विल मेक अ लाइन। अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इनको जो है सबको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हुए, इनको इसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं नंबर्स को। अब अगर फर्स्ट वाला देखें, जो लास्ट वाला कॉलम है, 1 के नीचे से मल्टीप्लाई के साइन है, तो इसका मतलब हम सिंपल 1 लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ हमें और कोई चीज ऐड नहीं करनी है, राइट? अब उसके बाद अगर बेटा हम देखें सेकंड वाले में 1 को 1 से ऐड करना है और उसके अलावा नहीं है। अब 1 + 1 का रूल क्या था बेटा? 0 के साथ 1 को कैरी देना था, राइट? 0 के साथ 1 को कैरी देना था। तो देखिए हम लोगों ने नीचे जो है 0 दे दिया है डाउन वाले को, और नेक्स्ट डिजिट को 1 कैरी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट डिजिट को 1 कैरी दे दिया है। अब बेटा अगर हम इसमें देखें 1 + 1 + 1, इसमें जो है 3 1s है। अब 3 अगर 1s ऐड करेंगे बेटा, 3 1s अगर हम ऐड करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जैसे इसमें 0 विद 1 कैरी दिया था, अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो इसमें 1 को नीचे लिख देंगे, 1 डाउन, एंड द अदर 1 विल बिकम 1 विल गो टू द नेक्स्ट डिजिट। 1 को एक को कैरी दे देंगे दूसरे डिजिट से। अब इसमें कितने 1s हैं बेटा? इसमें भी 3 1s हैं। एज यू कैन सी 1 + 1 + 1, there are 3 1s, so the answer will become 1 down and 1 will become to the 1, we will give the carry to the another digit. Okay, now we have 2 1s, you can see एक हमने जो कैरी दिया था और एक जो हमने लिखा हुआ था। So 1 + 1 was 0 with 1 कैरी। 0 हम इधर लिख देंगे बेटा और 1 इसको कैरी दे देंगे। ठीक है, अब 1 + 1, 1 + 1 भी बेटा क्या हो जाएगा? 0 with 1 कैरी। 0 इधर आ गया और 1 हमने क्या दे दिया? कैरी दे दिया। अब इसके ऊपर सिर्फ एक 1 था, तो अब हमने नीचे जो है वो 1 कॉपी कर दिया। तो अब इसका हम आंसर बेटा कैसे लिखेंगे? यू कैन सी के 1 0 0 1 1 0 1, और इसको बेटा हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमने किसमें इसको कन्वर्ट किया था? बाइनरी नंबर में मल्टीप्लाई किया था। तो इसकी जो है इसका सबस्क्रिप्ट करके लिख देंगे 2, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में ही कन्वर्ट किया, और बाइनरी की वैल्यू क्या होती है? 2। Okay, everyone, now open page number 4 of the book. Okay, example 2.
बेटा अभी जैसे हम लोगों ने 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया था, अब हम हमारे पास एक और एग्जांपल 2 है, उसका है 4 डिजिट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 1 1 एंड 1 विद द 1 0 0 0 1. ओके, इसको जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. इसका भी वो ही सॉल्यूशन है, जरा देख लेते हैं. ओके बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वाज 1, हमने नीचे लिख दिया है 1. अब फिर उसको सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर ले. 1 1s आर 1 एंड 1 1s आर 1 एंड 1 1s आर 1. अब हमने एक डिजिट को सॉल्व किया, सेकंड कॉलम के एक डिजिट को सॉल्व किया है. तो अब जरा सेकंड डिजिट पे आ जाए, सेकंड कॉलम पे. अब बेटा जब सेकंड डिजिट पे मूव होते हैं तो एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हैं हम. 0 1s आर 0 लिख लिया हमने. 0 1s आर 0 ये भी लिख लिया. 0 1s आर 0 ये भी लिख लिया. और लास्ट वाला कर दें 0 1s आर 0, ये भी कर लिया. अब उसके बाद बेटा 2 लगा दें आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई के 2 साइंस लगा दें क्योंकि अब हम थर्ड डिजिट पे मूव कर रहे हैं. अब फिर 0 है. 0 1s आर 0, 0 1s आर 0, 0 1s आर 0 एंड 0 1s आर 0. ओके, ये हो गया, ठीक है. अब बेटा अब हम फोर्थ डिजिट पे मूव कर रहे हैं तो हमारे कितने मल्टीप्लाई के साइंस आएंगे? 3. 3 जब मल्टीप्लाई के साइंस आ जाए तो जरा सॉल्व कर लेते हैं. 1 1s आर 1, 1 1s आर 1, 1 1s आर 1 एंड 1 1s आर 1. अब ये बेटा जब हमने सब सॉल्व कर लिया है, जरा इसको अब हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब हम इतना प्रोसेस कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि इनको सॉल्व कर लेना. अब 1 के नीचे अगर हम देखें तो सिंपल बस मल्टीप्लाई के साइंस, तो सिंपल 1 लिख दें. 1 के साथ अगर 0 ऐड करते हैं बेटा, 1 प्लस 0 क्या होता है? सिंपल 1, इसको हमने लिख दिया. अब थर्ड डिजिट, थर्ड कॉलम पे मूव करें. 1 प्लस 0 1 था, 1 प्लस 0 1, तो सिंपल 1 लिख दिया. ठीक है, अब फोर्थ डिजिट पे मूव करें बेटा. इसमें 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1. नाउ 1 प्लस 1 क्या बताया था मैंने? 0 विद 1 कैरी. 0 इधर लिख दिया और 1 दूसरे कॉलम को कैरी दे दिया. ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1. नाउ 1 प्लस 1 विल बिकम 0 विद 1 कैरी. अब इसको आप लोग आ जाएं 6 डिजिट पे. 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 विद 1 कैरी. हो गया. अब 1 प्लस 1 कर ले, 0 विद 1 कैरी. अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दें. अब इसका प्रोडक्ट बेटा ऐसे ही लिखेंगे. इसका आंसर, ये जो हमारा आंसर आया इसको लिख के इसकी बेस वैल्यू जो आ जाएगी वो है 2. आई होप हियर इट्स क्लियर, and then the next topic we will start from the next class.